Hello everyone, this is the question of share capital in which we will discuss about the oversubscription, how we make the table of adjustment related with the adjustment of capital. So first of all, look at this question. This is a very good question, so that I am just making the video of this. In this question there is given that total capital is 10 lakh rupees, authorized capital is 10 lakh of share capital, in which number of shares is 1 lakh. So this is authorized capital. Authorized capital, this is 1 lakh, number of shares, 10 lakh is the amount. So definitely you must understand that 10 rupees is the value of per shares. Now, in which company has decided to issue 60,000 shares. Company has decided to issue 60,000 shares to the public, right? But how much applications company received? How much company application received? This is given in your question, that is 92,000 shares were received. So it means subscribed capital. Subscribed capital, how much? 92,000 shares. Am I clear to all of you? 92,000 shares are subscribed or applied capital. Now, directors has decided to allot these shares in some manner which is given there in question. What is this? Director decided to allot 40,000 shares, the first 40,000. Director screen out 40,000 shares from these 92,000 shares and allotted full number of shares to these 40,000. So what does it mean? It means that director screen out first 40,000 shares and allot them complete shares. Next one, 50,000 shares, second category. And director decided to give them 40% shares. What does it mean? 40%? 20,000. Am I clear? 40% of these. And this is the case of pro rata allotment. In this category, they have introduced, directors have introduced, company has introduced pro rata allotment, which is called proportionate allotment. Am I clear? And the last one, applicants for 2,000 shares. Applicants for 2,000 shares does not allow any shares. Am I clear to all of you? Is this clear? समझ आ रहा है? You can speak. Clear? Okay. So now total is 92,000 shares, which I have already mentioned you that company got application of 92,000 shares, but company can allot only 60,000 shares, not more than that. Now the task is that we have to make a table which is called analytical table, right? So how we will make it? Just look at there, analytical table. In this analytical table we will make the columns, we will make the lines, so that we can cover this amount. These are the columns which will make. These are the number of columns where we will show the adjustment of these all categories of these shares. The first one is 40,000 to 40,000, means the first category in which 40,000 shares you have screen out and you allotted them full shares. तो भाई ये अच्छे होंगे, इनको पूरे shares company दे रही है. Second one, 50,000 in which 20,000 shares are allotted, means 50,000 में कंपनी ने डिसाइड किया आई विल अलाउ
20,000 shares for allotment, and for 30,000 shares company will not be able to allot them. Reason simple, company have a limit of issue shares 60,000, company उसको cross नहीं कर सकती. And the last one 2,000 nil. So now this is the structure of analytical table. One by one we will look all the points. First of all, share applied, कितने shares applied हुए और कंपनी ने कितने shares को allot किया. Shares applied and shares allotted. This is the first thing you will write down there. Next one, money received and money due. Next, excess. Next, adjustment of this excess money. इस excess money का adjustment किया गया किसके साथ? आगे की calls के साथ. Adjustment with further calls. And last one is refund. So this is the overall overview of this table. One by one I will tell you how we will adjust this money. Is this excess money according to the rules and regulations of Companies Act 2013. The very first 40,000 shares. अब भाई 40,000 shares को आपने कितने शेयर दिया? 40,000. तो पहले यहाँ लिखिए 40,000 shares, उनको अलॉट भी 40,000 हुए. पहली कैटेगरी 40,000 शेयर्स थे, उनको पूरे 40,000 अलॉट हुए. आपको इनसे मिला कितना होगा? कैन एनीवन टेल हाउ मच मनी यू हैव रिसीव्ड? डेफिनेटली 3 रुपीज़. एप्लीकेशंस कितने की थी? 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन. तो 3 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन का मिला होगा इनसे, इन 40,000 से. तो यहाँ मनी रिसीव्ड में 3 रुपये और ड्यू में भी आप 3 रुपीज़ लिखोगे, राइट? सो 40,000 इंटू 3 120. 40,000 इंटू 3 120. अब ये ड्यू और रिसीव्ड कैसे आता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा. जो अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं विद दिस अमाउंट. अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं विद दिस अमाउंट एंड वी विल राइट डाउन इन मनी रिसीव्ड. अलॉटेड वाले का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ड्यू में. समझ आ रही बात? तो शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इजी हैं. आपको क्वेश्चन में वैसे ही दिया था 40,000 को 40,000 मतलब 40,000 अप्लाइड 40,000 अलॉट. 40,000 इंटू 3 40,000 इंटू 3 40,000 इंटू 3 करने पर भी वही अमाउंट आएगा, इस वाले का भी अमाउंट करने पे वही आएगा. तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे तो ड्यू लिखा है, यहाँ अलॉटमेंट लिखा है, तो अलॉटमेंट अमाउंट आनी चाहिए. नहीं, हम एप्लीकेशन के अमाउंट को ही चेक कर रहे हैं कि वेदर दिस एप्लीकेशन मनी इज कंप्लीटली यूज्ड और देयर इज सम एक्सेस मनी, राइट? सो हमें 120 मिला और 120 ही मिलना था क्योंकि हमने उनको नंबर ऑफ शेयर्स उतने दे दिए. नेक्स्ट कैटेगरी में गया एक्सेस. तो भाई एक्सेस निकलता है रिसीव्ड और ड्यू के डिफरेंस से, बट यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है तो एक्सेस नहीं होगा. एडजस्टमेंट तभी होगा जब एक्सेस होगा, तो एक्सेस नहीं है. और रिफंड भी कुछ नहीं. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सभी को. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, 50,000 शेयर्स को हम 20,000 दे रहे हैं. व्हाट डज इट मीन? 50,000 शेयर्स वी आर allowing them 20,000 शेयर्स. 50,000 को 20,000 दे रहे हैं. थोड़ा सा यहाँ पे प्रोरेटा हो रहा है, तो अब समझ में आपको आना चाहिए कि प्रोरेटा अलॉटमेंट जो बार बार मैं वर्ड यूज़ करता हूँ कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट जब होता है तब एक्सेस मनी मिलती है. तो उस मनी को हम कैसे एडजस्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है. इसी पे ही पूरा डिस्कशन टिका हुआ है एनालिटिकल टेबल, क्योंकि यहाँ पे तो कोई टेबल के यूज़ हुई नहीं, एक्सेस आया नहीं. यहाँ पे एक्सेस आएगा. एक्सेस तभी आएगा जब नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ज़्यादा हो और अलॉटेड कम हो. तो 50,000 इंटू 3 एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे आप. 20,000 इंटू 3. आई होप ये बात समझ में आ रही होगी सभी को. नाउ द एक्सेस मनी इज 90,000. Am I clear to all of you? This 90,000 money will be used for further calls. इस पैसे को, इस अमाउंट को हम यूज़ कर सकते हैं इस कैटेगरी के शेयर्स से के लिए आगे की कॉल्स में. भाई हमने इनको 20,000 तो शेयर दिए ना, तो भाई 50,000 इन्होंने मांगे बट हमने 20 दिए, मतलब हमने कुछ शेयर इनको दिए.
आगे हमें इनसे फर्दर कॉल्स या फर्दर इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगना है, लाइक अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो हम करें क्या, इन पैसे में से जो फर्स्ट अलॉटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है इन शेयर से, वो हम एडजस्ट कर लें, वो पैसा हम रोक लें और बाकी पैसा रिफंड कर दें। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि दैट मनी शुड ऑल्सो बी यूज फॉर कॉल्स, तो हम इस पैसे को और आगे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है और प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है क्वेश्चन में, तो रिमेंबर दिस पॉइंट दैट मनी विल बी यूज फॉर अलॉटमेंट। ये मनी किसके लिए रोकी जाएगी, अलॉटमेंट के लिए तो रोकी जाएगी, until or unless any other thing is given in the question. Am I clear? So यहाँ पर अलॉटमेंट कितने रुपए का है, जल्दी से देखिए, 3 रुपीज़। अब आप इसको रफ में करेंगे कि भाई 20,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट के समय आपको कितना पैसा चाहिए इनसे, 20,000 इंटू 3, दैट मीन्स 60,000। आपको इस कैटेगरी के शेयर से 60,000 चाहिए, इस कैटेगरी के शेयर से 60,000 चाहिए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और आप इसी कैटेगरी की चेक करेंगे, पूरे का नहीं देखने लगेंगे, पूरे मतलब 60,000 शेयर जो इशू किया उनका नहीं चेक करेंगे। यू हैव टू चेक ओनली दिस कैटेगरी कि भाई इस कैटेगरी के जो शेयर अलॉट हुए थे उनसे हमें कितना चाहिए। तो 20,000 इंटू 3 मीन्स 60,000। तो इस 90,000 में, इस 90,000 में आप 60,000 कीप असाइड करोगे, रिमेनिंग अमाउंट रिटर्न कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में फर्दर अमाउंट के यूटिलाइजेशन के लिए नहीं लिखा है, आफ्टर अलॉटमेंट क्या करना है ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सो व्हाट यू विल डू देयर, 60,000 एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को अच्छे से? ओके। एंड रेस्ट अमाउंट जो 90,000 में से 60 निकल जाएगा, तो रेस्ट अमाउंट 30,000 आप क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ऐसा कोई भी यहाँ नहीं होगा जिसको ये पॉइंट ना समझ में आ रहा हो। फिर भी अगर नहीं आता तो यू कैन गो इन कमेंट बॉक्स एंड मेंशन इट। लास्ट वन, 2,000 शेयर्स, आपके 2,000 शेयर्स थे। इस 2,000 शेयर्स में आपने एक भी शेयर्स नहीं दिया, नील, मतलब आपका कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ। तो जब कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ तो पूरा का पूरा जो पैसा आएगा वो रिफंड करोगे ना। जब उनको शेयर नहीं दे रहे हो तो उनका रोक भी नहीं सकते आप पैसा, अकॉर्डिंग टू द सेबी एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। यू हैव टू रिफंड दिस मनी विद इन 15 days, otherwise you have to give interest over it. So what you will do there, 2,000 into 3, that means 6,000. बट यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वो अमाउंट आती है जो अलॉटमेंट होते हैं, जो अलॉटेड शेयर होते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। 6,000 टैक्सेस, और इस एक्सेस को क्या करोगे, एडजस्ट हो नहीं सकता क्योंकि कोई अलॉटमेंट ही नहीं था, तो पूरा का पूरा रिफंड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आप टोटल कर लेते हो इसका, जस्ट टू करेक्ट और एक्यूरेट, just to check your accuracy whether it is correct or not. So very simple, it is 40 52, that means 92,000 शेयर। तो टोटल शेयर आपके 92 हो गए। अब इस 92 में ये वही शेयर है जो आपके शुरुआत में सब्सक्राइब्ड हुए थे। 40 + 20 60,000 शेयर्स। Am I clear? Here how much amount should be there? कितनी अमाउंट होनी चाहिए? वही अमाउंट होनी चाहिए जो 92 इंटू 3 करके आएगी, वही अमाउंट तो होनी चाहिए। आप चेक करके देख लो, 120, 150 एंड 6, 276, और आप मल्टीप्लाई करके देखें 92 इंटू 3, दैट विल बी 276, 60 इंटू 3 180। आप सम करके देख लीजिए, इसका डिफरेंस जो आना चाहिए वो वही होना चाहिए जो ऊपर का सम आ रहा है। मतलब यू कैन चेक योर ऑल बैलेंसेस वेदर यू हैव do something right or wrong. If you are incorrect anywhere, you can cross check it by making totaling of it. आप टोटल करके क्रॉस चेक कर सकते हो। लास्ट में 60,000 आपने एडजस्ट किया एंड 36,000 आपने रिफंड किया, राइट? एंड दिस 60,000 विथ अलॉटमेंट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन। कीप वॉचिंग माई चैनल प्रकाश नारायण पांडे मोहित, PN पांडे मोहित के नाम से आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।
like it, share it. Thank you.